something harmful, something not good. That was the perception of media. So you need to be protected. So there are some tools and technologies that help you protect from the ill effects of media education, from the media content. So that was the idea back then. And after that, they moved from the inoculation or protectionist model to the demystification model. So let me share my screen before I proceed further. I need to connect the pen tab in order to be able to write. Give me a minute. I'll get it ready. In the meanwhile, the students who are new and they are not aware of the protocols of the class, let me remind you that you need to keep your pen and paper handy, your notebook and your pen, so that if you feel there is something important worth noting, you can note it down, because I'll not be providing separate notes, second-hand notes. No. Whatever I teach in the class, if it's in the form of PowerPoint slides, they'll be shared with you. But if it's in the form of lecture or something I write, if you feel it is important, and I recommend, if you can, please make notes so that you can get help later before the exams. So okay, so the first model was protectionist, or the inoculation model. I guess there is just one N in inoculation, not the. Okay. And the second approach is known as the demystification model. This is what we have planned to discuss in today's class. There is this part of this word D, and then there is another part called mystification. So what is mystification and what is demystification? You already know that if there is some mystery, just a minute. A thing that you cannot understand or explain. This is how mystery is understood. Mystery is something that you can't understand, something that is hidden, something that is covered, not clear. And when you add D to it, so mystification is making something a mystery. That means making something difficult to understand, making something difficult to comprehend. So demystification is opening it up, letting you understand it,
making things clearer. So that is demystification. So what this model says, actually it began in around 1960s, but it didn't get very popular until 1980s. So these are factual things that you can remember. If they ask you to write about demystification model, you can write about these dates. So Sir, can you repeat what? the What do you want me to repeat? dates? It started taking shape in 1960s and it became dominant around 1980s. It's written on my screen. I guess you can see the screen. Yes. Screen तो visible है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. Okay. Fine. Yes, sir. Okay, so let's move forward. We were talking about the demystification model. So it's this model is focused more on the culture that is there, that is represented through the media. So it's about culture as well as language. The fundamental idea of demystification model is that media education, media content, in fact, cannot present the world. All it can do is, just a minute, there is somebody at the door. Yes, please come in. Log नहीं है, push कीजिए. Sorry for the interruption. There was a student, he had some queries. यहाँ भी बच्चों के आने का सिलसिला क्लास में भी अपना लगा ही हुआ है. प्लीज आप लोग जब लिंक शेयर किया जाए उसी वक्त ज्वाइन कर लिया कीजिए. अच्छा खासा टाइम बीत गया, अभी भी आए जा रहे हैं. Okay, so it focuses on language and culture, and the main thing is that it is viewed as the media content is viewed as something that cannot present the world, rather it only represents the world. Represent and present, these are two different things. So when we say represent, means whatever is happening in the culture of that society, in the culture of the world, that means it's just a reflection of what is happening in the society. It's merely a representation of that. It maybe you like it, you dislike it, that's a different story. You think it's good, you think it's bad, you think it should be like this, like that. Actually, it's a representation of the popular culture, at times high culture. High culture and popular culture, there is some difference in that. Can somebody explain to me what is the difference between high culture and popular culture? In these contexts, high culture is considered to be something that the royal people or the upper class, those who are financially more well off, those who have better access to resources, so they adopt. This particular culture is known as high culture.
So those who set the tone of the high culture, they consider others to be following low culture. On the other hand, popular culture is something that has wide acceptance. Maybe a greater section of the society follows that culture or adopts that rather than a handful of elites. So there is this subtle difference between high culture and popular culture. Irrespective of that, at times it represents the high culture, at times it represents the popular culture, but all the media content does is representation. It cannot present the world, it can only represent the world. Media cannot present the world. It can only ever represent the world. This is one of the key features, the silent defining features of this demystification model. And this, in a sense, is based on something known as Barth's mythologies. He wrote a book named Mythologies. So in this, he discusses a lot of philosophical aspects. So based on that, we can derive these. So let's say, call it point one. Media cannot present the world. It can only ever represent the world. And the next point that can be derived is that it... Just a minute. Challenges the distinction between high and popular culture. Now, this is something important. See, I have already explained the difference between high culture and the popular culture. Now, it challenges this distinction. That means this model is against this distinction of superiority and inferiority. That means there are some people who can be considered as elite, who can be considered as royal, who can be considered as upper class. So, and then the cultural tone is set based on what they do. Instead, you should wipe out the difference between this high culture and popular culture. Culture is culture. Maybe a small section of society is following it. Maybe a large chunk of society is following it. Maybe the elite class is following it. There are certain aspects of the culture that permeates across the classes, across the faiths, across the geographies. And there are certain features, there are certain aspects of culture that are limited to a particular section of the society or a particular geography. So you should give due respect to all those widely accepted norms as well as the social aspects, the cultural aspects of smaller subsections of the society at large. So that is what this model intends to do. So this is considered by some experts as the left-leaning thing. Classic. Why left-leaning? Because normally the leftist ideologues, they are against this notion of popular culture or notion of ruling class, elite class, etc. How honest they are in their approach is debatable. That's a different issue, and we are not going into right wing versus left wing. But this particular approach is considered generally as a little left leaning. So that was from 1960s, 80s till maybe 1990s. So this particular model was
followed, where now there was a significant paradigm shift. Instead of considering the media as something bad or something wrong, it, it came to be perceived as a reflection of the society. अगर society में अच्छाई है, if there is good in the society, the media will reflect that. If there is some bad in the society, the evil in the society, the media will reflect that. So media per se is not good or bad, rather it is a reflection of the society, the culture in which it is operating in, right? So that was the shift. And then after that, they gradually moved on. Just a minute. So if you want to note down these silent things, please note it down. I'll be moving forward. सर थोड़ा हिंदी में इसको शॉर्ट कट में समझिए सर, थोड़ा हिंदी में। अच्छा, हिंदी मिक्स करूं? कोई अगर यस सर, थोड़ा हिंदी भी बोले सर, इंग्लिश थोड़ा नहीं हो पा रहा। ओके, आई गॉट यू। क्लास में अगर कुछ बच्चे ऐसे हों, अभी नए एडमिशन हुए हैं, तो पहले तो मैंने पूछ लिया था, मेरे जहन से फिर निकल गया था। बाय द वे, कोई ऐसे बच्चे तो नहीं जिन्हें हिंदी नहीं आती है बिल्कुल भी? इज देयर एनीवन इन द क्लास हु डज नॉट नो हिंदी? सर सभी इंडियन है, हिंदी तो आती ही होगी। कोई बात नहीं, हमें नहीं पता है ना एडमिशन का स्टेटस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझे हिंदी पे ला दिया था। आज सुबह मैं एमटेक की क्लास ले रहा था, अब एक इराक के स्टूडेंट ने मुझे टोक दिया कि इंग्लिश में बोलिए। अब उसे क्या पता हिंदी क्या होती है? तो ये यूनिवर्सिटी सिस्टम में थोड़ा सा होता है मसला। तो अगेन आई हैड टू स्विच बैक टू इंग्लिश। एनीवे, मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ आप लोगों से। चलिए सर, आप बोलो इंग्लिश में, थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिया करो। ठीक है, ओके, मिक्स कर दूंगा। तो इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, कहानी नहीं समझ में आई, हिंदी में एक बार रिकैप दे दूं इसका? यस सर, यस सर। ठीक है। आप जिसमें समझ ले, समझना इंपॉर्टेंट है, बट धीरे धीरे जो है ना इंग्लिश का माहौल बनाइए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन आपके लिए वो जरूरी होगा। ठीक है, तो पहला मॉडल जो हमने देखा था, दैट वाज इनोकुलेशन मॉडल। इनोकुलेशन मॉडल मतलब उसमें मीडिया को अपने आप में बुरा समझा जाता था और फिर हमें उससे बचाने की कोशिश की जाती थी। बचाने के कुछ टूल्स टेक्निक्स हो सकते हैं जिन्हें एम्प्लॉय किया जा सकता है। उसके बाद ग्रेजुअली जो शिफ्ट हुआ वो डीमिस्टिफिकेशन मॉडल पे आया। फिर मीडिया को अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं समझा गया, बल्कि मीडिया को सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन समझा गया कि सोसाइटी में अगर अच्छाई है तो मीडिया उसे रिफ्लेक्ट करेगा, अगर बुराई है तो मीडिया उसे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर सोसाइटी में चोरी है, क्राइम है, किडनैपिंग है, मर्डर है, ये चीजें हो रही हैं, तो मीडिया उसे शो करेगा, रिपोर्ट करेगा। इसका ये मतलब नहीं कि मीडिया बुरा है, सोसाइटी ऐसी है तो उस चीज को मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, अगर सोसाइटी में लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, गरीबों को कपड़े पहना रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के काम आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, सोशल कोहेजन बहुत अच्छा है, कम्युनल हार्मनी बहुत अच्छी है, तो मीडिया में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो मीडिया जो है ये सिर्फ वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, जो हो रहा है उसे दिखाता है, ना कि अपने आप से कोई चीज क्रिएट करता है। तो परसेप्शन थोड़ा चेंज हुआ इस चीज को लेकर के। डीमिस्टिफिकेशन मॉडल इसे कहते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ लिख दिए थे, आप चाहे तो नोट कर लें। वन, मीडिया कैन नॉट प्रेजेंट द वर्ल्ड, इट कैन ओनली एवर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड। मीडिया जो है कुछ अपनी तरफ से नहीं प्रेजेंट करता है, बल्कि दुनिया में जो चल रहा है उसे दिखाता है। सेकंड, ये जो इस पर्टिकुलर मॉडल की बात कर रहे हैं, डीमिस्टिफिकेशन मॉडल में, इसमें जो टॉप क्लास का जो कल्चर होता है, हाई कल्चर जिसे बोलते हैं, और जो ज्यादा लोगों के फॉलो करने का कल्चर होता है, जिसे पॉपुलर कल्चर बोलते हैं, इन दोनों के फर्क को मिटाया गया। यानी कल्चर कोई भी हो, चाहे कम लोग फॉलो कर रहे हैं, ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हो, अमीर फॉलो कर रहा हो, गरीब फॉलो कर रहा हो, एक धर्म वाला फॉलो कर रहा हो, दूसरे धर्म वाला फॉलो कर रहा हो, कल्चर कल्चर है, उसको एक नजर से देखा जाए। ये हाई वर्सेस पॉपुलर के डिफरेंस को हटा दिया जाए। ठीक है, इस तरह की चीजें होने लगी। ठीक, अच्छा, अब हम मूव कर रहे थे आगे थर्ड मॉडल पे। एक मिनट मुझे ब्रेक।
Okay, so the third model now is known as the creative participation model. Okay, so it started to take shape in early 90s. ये जो कहानी है ये 1990s की है, समझ लीजिए, ठीक है. And it was heavily influenced by constructivism. ये सब फिलॉसफी के टर्म्स हैं, ठीक है. मैंने पहले ही बता दिया था कि ये चीज थोड़ा हम फिलोसॉफिकल एंगल से लर्न करेंगे. ये पूरा जो सिलेबस है कुछ ऐसा ही है, ठीक है. एक मिनट जी. Okay, there is a query that I want to pose to your class. Has anyone mailed to you regarding the physical verification of documents? No, sir. कोई मेल नहीं मिला आपको? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. लास्ट डेट क्या है? नो सर. ओके. नो सर. आपको मेल मिल जाएगा 30 नवंबर जो है ना, 30 नवंबर तक लास्ट डेट है. उससे पहले कभी भी आ करके यहाँ जो BCA के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे. आपने जो एडमिशन लिया है दैट वाज प्रोविजनल एडमिशन ऑनलाइन मोड में. तो ऑफलाइन मोड में फिजिकली ऑफिस में आकर के आपको वेरीफाई कराना होगा. फर्दर क्वेरीज के लिए आप उन लोगों से कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है. मैं बस ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा था, ठीक है. सर आप मेल कर दीजिए ना, फिर आपसे ही क्वेरी कर लेंगे. Sir, before 30 November. यस, Okay, sir. आप मेल कर दीजिए. आपके पास तो लिस्ट है ही, आप खुद ही कर दीजिए ना फिर. ठीक है, ठीक है. डॉक्यूमेंट्स के आगे लेके जाने हैं. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है. अब ये जो क्वेरीज है ना वो मेल जहां से आएगा वहां पूछ लीजिएगा, ठीक है. पढ़ाई हो गई है पूरी? एग्जाम्स कब से होंगे? अभी पढ़ तो लीजिए, अभी स्टार्ट ही हुआ है. अभी पहला यूनिट भी आपका खत्म नहीं है, आप एग्जाम की बात कर रहे हैं. जब होंगे तो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी. अभी हमें खुद भी खबर नहीं है, सब कुछ कोविड के चक्कर में लेट चल रहा है. अभी एडमिशंस कंप्लीट नहीं हुआ. आज की क्लास में नए स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. आपको अंदाजा है? मतलब एज अ टीचर मैं क्या करूँ. तो ये अभी चलेगा कुछ दिन तक. एडमिशन क्लोजर जब अनाउंस होगा उसके बाद फिर हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि मे बी कब हो सकता है. अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है. तो थोड़ा सा सेशन लेट चलता है. पहले यूजुअली जब सब कुछ नॉर्मल चलता था तो दिसंबर में आपका सेमेस्टर एग्जाम हो जाया करता था. बट आप अभी आपसे कह दिया जाए कि दिसंबर में सेमेस्टर एग्जाम है, करवाना चाहें तो करवा लें, हमें क्या है, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है. वो जो अथॉरिटीज हैं वो डिसाइड करेंगे एंड आई विल कन्वे दैट टू यू, ठीक है. आपको पता चल जाएगा, घबराइए नहीं. ओके, सो चलिए ये सब बातें होती रहेंगी. पहले मैं काम की बातें कर लूं, ठीक है. तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? फिलॉसफी का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं कि जो भी नॉलेज है, ठीक है, दुनिया के अंदर जो भी नॉलेज है दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन योर हेड. आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में वो कंस्ट्रक्ट होता है. सब आपके दिमाग की उपज है. यहाँ ह्यूमन ब्रेन जो है दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज. अगेन
दिस इज अ फिलोसॉफिकल नोशन, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, इससे अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, ठीक है, बट इसमें ऐसा ही समझा जाता है। तो अब जब ये सीट ऑफ नॉलेज है, यहाँ सब कुछ क्रिएट होती है, तो थोड़ा सा पहले से चेंज लाया गया अब चीज़ों को समझने में, बजाय इसके कि लोगों को पढ़ाने या समझाने की कोशिश की जाए या बताने की कोशिश की जाए कि देखो भाई ये मीडिया तुम्हारे लिए ख़राब है, इससे दूर रहो, ठीक है, दूर रहने के लिए ये तरीका इख्तियार कर सकते हो, या फिर उन्हें ये समझाने की कोशिश की जाए कि नहीं मीडिया बुरा नहीं है, मीडिया तो ठीक है, मीडिया बस वही कर रहा है जो सोसाइटी में हो रहा है, बस उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीडिया और कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। और देखो ये जो फ़र्क बना रखा है लोगों ने, जो हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर का, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, इसको मिटा देना चाहिए, और सारे सेक्शंस की, सारे कल्चर्स की बातें जो हैं वो मीडिया में आनी चाहिए और उन सब को इक्वल नज़र से देखा जाना चाहिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं काइंड ऑफ एक प्रीचिंग चल रही है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप सिखाने की नहीं, इनफैक्ट आप एक तरह से उन्हें बता रहे हो, प्रीच कर रहे हो, टीच कर रहे हो, ठीक है। अब ये यहाँ जो है चेंज हो गया, अब क्रिएटिव पार्टिसिपेशन मॉडल में लर्निंग को फैसिलिटेट करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप उन्हें इम्पार्ट करें नॉलेज, बल्कि आप ऐसा एनवायरनमेंट दें उन्हें जहां वो नॉलेज एक्वायर कर सके, ये उनके ऊपर छोड़ दें, वो अपना दिमाग लगा करके अपने ब्रेन से क्या एक्वायर करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, लेट देम एक्सप्लोर दैट, लेट देम डू दैट रादर देन इम्पार्टिंग नॉलेज टू देम। ये चीज चेंज हुई। मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं आप में से कोई, एनीवन? यस सर। इसमें क्या होता है थोड़ा ब्रीफ करेंगे ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए। जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम होता है उससे कैसे डिफरेंट है मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम? नहीं पता है? चलिए मैं बता देता हूँ। छोटे शहरों में तो अभी भी शायद मुश्किल है, बट बड़े शहरों में थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट आने लगा है। इंडिया में अभी भी बहुत कम है, बट दूसरे कंट्रीज में ये चीज़ें एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम के तौर पे पाई जाती हैं। किसी ने इन्वेंट किया था और बहुत सोच समझ के इसे किया था। जो पॉपुलर आपका एजुकेशन का सिस्टम है ना, उसमें क्या होता है, बच्चे को पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, उसका एग्जाम लिया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है। एक क्लास में नर्सरी है, LKG है, UKG है, प्रेप है, उसके जो भी बच्चे हैं तो उनका एक पर्टिकुलर सिलेबस है, वो सिलेबस उन्हें कंप्लीट करना है, फिनिश करना है। सारे इंडिविजुअल्स को एट पार विथ ईच अदर ट्रीट किया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खास तवज्जो नहीं दी जाती है उस पर। हर किसी को इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, दिस इज द पोर्शन यू हैव टू कवर इट, लाइक व्हाट वी आर डूइंग नाउ। आपका एक सिलेबस है तो वो सिलेबस आपको कवर करना है, और उसके बाद फिर एग्जाम होगा। एग्जाम में आपको आंसर देना है, आपके आंसर के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको इवेल्युएट किया जाएगा कि ये टॉपर है और ये फेलियर है और ये मीडियोकर है, ठीक है। ऐसा होता है। लेकिन मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम में क्या है, और उसमें टीचर पढ़ाता है, सुनो ये ऐसा होता है, इसे पढ़ो, इसे सीखो, ये होता है अप्रोच। मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम में ये है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चों को साथ में आप बैठाते हैं और थ्रू वेरियस एक्टिविटीज आप एक एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें बच्चा लर्न कर सके। लेट्स से एक 2 to 3 years एज ग्रुप का बच्चा है, उसके साथ 4 to 5 years के एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो भी बैठे हुए हैं। तो 4 to 5 वाले 2 to 3 एज ग्रुप में, या और ऊपर चले जाएं, 4 to 5 के साथ अगर आप 5 to 6 या 6 to 7 एज ग्रुप के बच्चे बैठे हुए हैं, तो जो चीज़ें उन्होंने सीख रखी हैं वो उन्हें आती हैं, वो करेंगे और ये देखेंगे उन्हें, और देख करके सीखेंगे। जैसे बच्चे बड़ों को देखते हैं तो वही चीज़ कॉपी करते हैं। घरों में आपने देखा होगा, आपके घर में भी छोटे बच्चे होते होंगे, कहा जाता है चिल्ड्रन लिसन विद देयर आईज, बच्चे अपनी आंखों से सुनते हैं। आप उनको कहते रहिएगा बेटा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, नहीं करेंगे, लेकिन आप जैसे करेंगे वैसे वो भी करेंगे। उनसे कहिएगा बेटा फोन मत लो, अच्छी चीज़ नहीं है, कार्टून मत देखा करो, यूट्यूब मत चलाओ, वो नहीं सुन के देंगे। लेकिन अगर आपके घर का कल्चर ऐसा है कि आप खुद फोन नहीं यूज करते हैं, मिनिमली यूज करते हैं, जरूरत के तहत आप बुक्स लेकर के बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो बच्चे भी किताबें पढ़ेंगे, ठीक है। आदत पड़ेगी, जो देखेंगे वो करेंगे।
तो ये अपने बड़ों से सीखना, तो उनसे बड़े एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ उन्हें बैठा दिया जाता है, माहौल ऐसा दे दिया जाता है एक्टिविटीज के थ्रू, उनकी लर्निंग को डिफिकल्ट नहीं बनाया जाता है, इजी गोइंग। एग्जाम्स वगैरह का एज सच ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि इनके 90 मार्क्स आए, इनके 80 आए, इनके 70 आए। हर बच्चा अपने पेस पे लर्न कर रहा होता है, तो थोड़ा लिबरल टाइप का कॉन्सेप्ट दिया गया एजुकेशन का। वही कॉन्सेप्ट मोर और लेस समझिए यहाँ पे है क्रिएटिव पार्टिसिपेशन मॉडल में। इसमें क्या है कि आप ऊपर से इम्पार्ट करने की कुछ भी कोशिश करेंगे, दैट वोंट मेक मच सेंस। द फंडामेंटल आइडिया इज दैट द लर्नर्स कैन मेक सेंस ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव लर्नड सो फार। अभी तक जो उन्होंने सीख रखा है उसकी बेसिस पे ही वो चीज़ों को समझेंगे। आप अपने हिसाब से उन्हें अगर इम्पार्ट करने की कोशिश करेंगे कोई चीज़, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। उन्हें सीखने दीजिए, उन्होंने अब तक जितना सीखा है उसकी बेसिस पे इवेलुएट करेंगे, फिर आगे सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दैट इज़ द लर्निंग। तो इन दिस मॉडल द लर्नर्स आर लेफ्ट टू learn on their own with, of course, the environment that is created for this. Facilitate करेंगे आप impart नहीं करेंगे, facilitate करेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्रिएटिव पार्टिसिपेशन मॉडल। इसके बारे में एक दो पॉइंट्स अगर आप मेंशन करना चाहें तो लेट मी राइट इट फॉर यू। तो सबसे पहली चीज जो इससे रिलेटेड आपके जहन में होनी चाहिए वो ये है कि इट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, दैट इज ऑल नॉलेज, ये फंडामेंटल प्रेमाइस है इनका, ऑल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज constructed in human mind. The second thing, ये इनफैक्ट कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया। क्रिएटिव पार्टिसिपेशन मॉडल में जो और प्रेमिसेस हैं वो क्या हैं? लर्नर्स कैन ओनली make sense of new situations in terms of their existing knowledge. And the last thing, the focus is on facilitating, learning rather than on imparting knowledge. यानी इंपॉर्टेंस यहाँ नॉलेज सीकर का है, इम्पार्टर का नहीं, ठीक है। एक एनवायरनमेंट दिया जाता है और उसे आप सीखें। दिस इज द मॉडल दैट इज नाउ प्रिवेलेंट। इसको अप्रिशिएट किया जाता है और इसे अप्लाई किया जाता है। ऑफ कोर्स, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस क्लासेस कि ये सारे मॉडल्स का कुछ ना कुछ एस्पेक्ट आपको हर टाइम में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये हार्ड बाउंड्री है कि इससे पहले ये था और इसके बाद ये। हर जमाने में ये सारी चीजें मिलेंगी, बट अभी जिसे सबसे ज्यादा अच्छा समझा जाता है और जो लेटेस्ट है वो यही है, क्रिएटिव पार्टिसिपेशन मॉडल जो चल रहा है, ठीक है, टिल डेट। सो अगर हम सिलेबस पे नजर डालें तो इसके साथ ही हमारी यूनिट 1 यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। यूनिट 1 इज ओवर। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, जो पीपीटी स्लाइड शेयर की गई हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा, और जो ये 3 मॉडल्स हैं जिसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास एंड दिस क्लास, इसको पढ़ लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अब अटेंडेंस लगानी है। अटेंडेंस में प्लीज़ अगर आपको अपना सेक्शन पता है तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अभी रुक जाइए, मैं